when I provide an integer value here, it takes it as an index value, not the element value. Okay. So it is totally different thing. If I just declare an integer variable here like this, or do if I do just put some value into this. See, so I have created an X variable which contains a value 2000 which needs to be deleted from the list. So instead of providing this, I can also provide this. So I just use the shortcut for it. Okay, just to Yes. provide an integer type value, because when we provide a value here, like if I provide just 2000, it will be treated as an int value, not integer value. And int is a primitive type and it will take it as an index value. It will not consider this value as the element value. Okay, so this was the Yes. reason I declared an object of integer, and in that object I provided the value so that I can get an element of integer type. Okay, Yes, ma'am. okay. Any other Ma'am, doubts? yes, ma'am. And ma'am, in the above loop, while loop, where we are printing our array, Array list. Yes. ma'am, in that we are accessing our list elements and typecasting in an integer and saving it in a object of wrapper class, integer wrapper class, X. True. Because we actually, let's see, we are getting a variable, and if I want to use this variable, I should have the appropriate you can say type of the value, na? Then I can use it. Because when we are using itr dot next method, so next method returns an object of object class. Up and now the object class is the parent of all the classes in Java. So अब हम देखें तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ पर हायरार्की को चेक करूँ, सो ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास कौन है? इंटीजर, राइट? Yes, ma'am. इंटीजर भी नहीं होगी, यूटिल होगी, और यूटिल के अंदर इंटीजर आएगा. सो अगर आप इंटीजर क्लास को इसकी चाइल्ड का क्लास मानते हो, सो कैन वी डायरेक्टली स्टोर द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट इनटू द चाइल्ड ऑब्जेक्ट? Hmm. नहीं हो सकता. We can't do that, na? We can't save the value of the object of a parent class into child class. Is it Hmm. possible? No. No, ma'am. That is the reason we need to typecast it. Okay. So Yes, that is ma'am. the reason we need to typecast it into integer so that we can store the value of object variable into integer type. And then we can store it in any variable. Or what you can do is, देखो अगर आपने यहाँ पर एक और चीज किया होता, मैंने किया होता n equals to integer dot parse int, और ब्रैकेट्स में मैं लिख देती itr dot next, राइट? तो पार्सेंट यहाँ पे प्रॉब्लम दे देता, बिकॉज हम एक ऑब्जेक्ट को टाइप में कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ Hmm. जाती है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखता है, द मेथड पार्सेंट इन द टाइप इंटीजर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट. क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंड वी कैन हम एक ऑब्जेक्ट को टाइप में थोड़ी चेंज कर सकते हैं. वी कैन डू दैट ना. दैट इज द रीजन we used the integer, because integer is in a class. तो एक ऑब्जेक्ट को क्लास के ऑब्जेक्ट में तो सेव कर सकते हैं, बट टाइप में चेंज नहीं कर सकते. क्लियर हुआ अभी यहाँ पे? Yes, ma'am. ठीक है. और इंटीजर क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट उसकी पेरेंट क्लास है, और पेरेंट क्लास को हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में सेव नहीं कर सकते थे, इसलिए टाइप कास्टिंग करना जरूरी था. यस मैम. मैम तो फिर हमने इसको डायरेक्टली इसको मतलब इंट के साथ एक्सेस कर सकते हो और मैनिपुलेशन कर सकते हैं. अब इंटीजर में जब जैसे एक वैल्यू आ जाएगी ना, तो इंटीजर को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो लंबा अच्छा. प्रोसेस होगा. अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, काम इससे चल रहा है तो इसी से चला लेंगे. इतना लंबा क्यों यस मैम. जाएगा? मैम जैसे सम एक इंटीजर हैगा और जो एक्स हैगा वो ऑब्जेक्ट हैगा इंटीजर क्लास का.
यस, तो वो उसको तो मैम इन ऑटोमेटिक टाइपकास्ट कर लेगा। यहाँ पे अच्छा ऑटो टाइपकास्टिंग हो जाएगी इंटीजर से इंट में, बट ऑब्जेक्ट की इंट में नहीं हो सकती। ओके मैम ओके, यहाँ पे ऑटो यस टाइपकास्टिंग चल जाएगी लेकिन वहां नहीं चलेगी। रिमेम्बर? ओके मैम ओके, एंड एनी अदर क्वेश्चन? ओके, मैम कंटिन्यू। हाँ जी बोलो। मैम जो कल वर्जन चेंज किया था उसके बाद जब इक्लिप्स में बिल्ड पाथ किया था ना, तो वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स बता रहा है। वो बोल रहा है कि जो बिल्ड पाथ है ना वो आपका कंप्लीट नहीं है। वो आई थिंक वन प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रहा था आपका। नहीं मैम, किस? प्रोग्राम चल नहीं रहा है वो। एक्चुअली वो इसलिए नहीं चलता है क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में एक भी फाइल में एरर होगा तो वो नहीं चलेगा। आप एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो मेरे को एक बार। ओके मैम। तो शिवानी, व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ, इसको ओके करो पहले। अब एक काम और कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाते हैं। पहले तो एक न्यू क्लास क्रिएट करो इसी प्रोजेक्ट में। इसका नाम कुछ भी ले लो, एनालिस्ट डेमो 2 3 4 कुछ भी ले लो। नाउ डू वन थिंग, क्या दिखा रहा है? इट्स बिल्ड पाथ इज इनकम्प्लीट कह रहा है। ओके, डू वन थिंग देन, एक काम करो फिर इसको क्लोज करो, क्योंकि अगर फाइल भी क्रिएट करने नहीं दे रहा है तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज कि अब